Amrita, hi. Hello. Hi, Hello Karan. everyone. Yeah, hi Hi, everyone. Karan. Great, Hi, great hi. to have you here. Welcome to the first episode Thank of the you. team behind that. Thank you so much, Amrita. So I'm very excited. Yeah, this was such an instant idea, and like I just asked you, and it was so great. It was so great of you to accept my invitation Oh for no, for dude, this like live we have session. had Thank you so conversation much. on Clubhouse, right? So I knew, and Yeah. after that I saw your podcast on YouTube, I guess. So I was sure we are gonna enjoy this. So I had to accept it. That's great. That's great. I was just telling everyone before you joined that how did you start? Like you were a Yeah, travel photographer and then you started Awan Musafir, and how it ranges from a variety of topics, right from like yeah, photography. It started with a photography kind of podcast, and now it's more into spirituality and all. yeah, So like just share us about your journey. How did it come into place? Like I would like to hear from all three of you, obviously. yeah. Yeah. So if I had to start, like it started very randomly, okay. So when pandemic hit, I was like, dude, up, I cannot travel anywhere because obviously, how will you travel? And this is the first stage of pandemic, okay, first lockdown. And I Yeah. was fried, okay. I was sitting at my home, sub books Hmm. khatam ho gayi padh ke. There's nothing to do, like literally Hmm. nothing to do. And I wanted to bring out some kind of content. So what I did was I started this other page. I don't want to take the name. It was really lame. It was called An Indian Boy. It's still there, I think so, or we have deleted it. I don't know. It's So still there. It's still there. yeah, so that was the page where I used to share tips and tricks about how you can grow on Instagram and other social media platforms. And I did my first podcast over there. Okay, it was just an audio thing, and it was solo. Like I was just giving tips. So that was the thing. Like that was the first podcast which I ever did. It was just me scripting out few lines, and I recorded it on my audio recorder and just put it out on Instagram. And वहां से वो शुरू हुआ था. फिर some like one day I have told you on Clubhouse also, right? Ranveer Alabadia is like he's God for me. He's that level. So and if I could, I would have put his photo in my temple or something like that because he's literally that person. So I saw his podcast and I was like, dude, this is the easiest way of creating content because you just need to bring someone in. This was my thought process then. I'm not talking about now. So, and then the whole process started. Like I looked up for guests, and the first few guests were my friends. Okay, and yeah, that's the whole story. Like वो randomly एक thought आया था, then it got bigger and bigger with time. फिर आई वाज लाइक कि ओके आई कैन ब्रिंग इन पीपल बट उस टाइम क्या अभी भी माय वीडियो एडिटिंग स्किल्स आर नॉट एज गुड एज इट इज ऑफ करण एंड ऑल्सो राइटिंग इज नॉट दैट गुड एज अंशुला का है तो आई फर्स्ट टेक्सटेड अंशुला ज्वाइंड इन एंड आफ्टर दैट करण ज्वाइंड इन एंड इसके पहले आई डिडंट इवन हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम ओके अंशुला के साथ फिर भी थोड़ी हुई थी बिकॉज वी हैड डन अ प्रोजेक्ट लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक Mm-hmm. but currency I was talking for the first time. And he joined in, he came with his own perspective, Anshula came with her own perspective. And फिर वो show बढ़ता गया, with time we figured out things and it is where it is today. Awesome. So, like, you guys did not know each other earlier, right? So, how did you guys meet or something? We did not. Okay, Like, so अभी तक Anshula हम and मिले Karan, you नहीं can go. है. अभी तक हम मिले नहीं है नहीं एक नहीं भी बार like मतलब. See, the thing is, still, जयेश how के did you साथ. get each other's Yeah. contact and how did Yeah, you yeah. start? I'll tell you that. So, मेरा जयेश के साथ I had done a 3 post series with him. I remember इसने एक story Yeah, डाली थी that I am looking for a concept. मतलब ये concept है, photographs हैं, and I want someone to write something for it. So मैंने कहा let's try. मैं उससे पहले लिखती थी for conceptual photographs. So I said let's try. तो मैंने जयेश को पिंग किया था कि okay I would like to go ahead with this. So can you just तो हमने वो एक प्रोजेक्ट टाइप का साथ में किया था मैंने और जयेश ने एंड इट yeah. वाज वे बैक लाइक शायद हमने 2018 में किया था वो राइट इफ उससे आई भी एम पहले नॉट उससे रॉन्ग भी मेरे को पहले. याद नहीं है और भी पहले किया था तो ये मेरे और जयेश के मिलने की कहानी है लाइक दैट इज हाउ आई नो हिम देन ही अप्रोच्ड मी कि आई एम स्टार्टिंग माय यूट्यूब चैनल सो आई वुड लाइक यू टू राइट द डिस्क्रिप्शन एंड all that stuff and would you like to come as a content writer so I was like okay why not but I was very dicey about it because I had just started my job as well
Like professionally, I'm an engineer, so I'm working with an MNC. So I was very dicey कि हो पाएगा, but then it happened. I was like मैंने जयेश को बोला था, जयेश, see, I am also doing a job. I'm not sure ये कैसे होगा, but ठीक है, let's go ahead with it and let's see क्या होता है. So that is how I and Jayesh connected. Karan ki story is also similar. Like he is also an engineer. And he is a very good video editor as well. और उसके अलावा भी he has a lot of skills जो हमारा एक entrepreneurial side जो आता है शो में, वो करण काफी ज्यादा लेके आता है इस चीज को. तो करण के साथ वो जयेश ने स्टोरी डाली थी अगेन कि he needs a video editor. So I guess Karan had approached him, or right Karan, if you want to go ahead with that, and your I'm really story. thankful for that कि जयेश ने story डाली, and coincidentally I was back on Instagram at that time. I was on a detox kind of phase. और उसके बाद luckily maybe this was the first or the second story I saw after joining Instagram back. And I'm really thankful कि हाँ वो process continue रहा, and we are still going back. So that is how we all met. Great. when Karan approached me, उस time पे I Quite had no clue about Karan कि हमने क्योंकि कभी पहले बात ही नहीं की थी. ओके, मतलब इंस्टाग्राम पे I was not even following him at that time, तो I didn't even know कि मतलब करण है. फिर he got in touch with me and I told him, and उसके पहले मैं 3 या 4 वीडियो एडिटर्स के साथ में काम कर चुका था फॉर द सेम शो. ओके, एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई नहीं मिल रहा है, वो थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं हो रहा है किसी के साथ. एंड देन ही केम इन, and starting say he is doing his own work like on the video editing side, and somewhere I connected with him, like his thought process and my thought process. In fact, Anshula ka bhi thought process matches a lot, although like there will be we obviously have differences sometimes. yeah, but ठीक है, we have but our then differences, when but you need आ to जाते match, हैं. उधर match हो जाता है. I think every team या every person has a different perspective. Yeah. तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा बहुत clash होगा ही. So how do you deal with these conflicts जब team में होता है? Anshula should take this one. Because okay, before Anshula goes, so Anshula came in as a content writer, but right now she's sort of managing the whole thing on the back end side, because मैं नहीं कर सकता, I don't have those skills कि मैं firstly team उतने अच्छे से manage कर सकूँ, या जो चीजें वो सॉफ्ट स्किल्स के साथ कर सकती है उसके वो मैं कर सकूँ. तो she has a better perspective on this. ये And recently ये we had जयेश to का fire बड़प्पन someone है, from ये the जो भी team, बोल so रहा है वो भी अभी. उसकी I would say that like he can handle a team, but the thing is जब आप कुछ शुरू करते हो, right, like जैसे जयेश का आइडिया था, this was जयेश's आइडिया कि उसको पॉडकास्ट स्टार्ट करना है. तो when you start it ना, तो सबके दिमाग में एक चीज होती है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ. So that single person wants to do everything, but ऐसा हो नहीं पाता. Like you cannot do all the things at once, right? तो जयेश जब स्टार्ट किया था, तो he had the similar thing in him कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये अभी भी करता है ये सेम चीजें, बट इट्स जस्ट दैट अब वो आके मेरे को बोलता है एंड आई लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड कि ये इससे करवा सकते हैं या ये ऐसे हो सकता है, सो यू डोंट हैव टू डू इट, राइट. तो क्लैशेस अब तक आई गेस हम तीनों में तो नहीं हुए हैं. हम तीनों में क्लैशेस ऐसे सच नहीं हुए, कोई बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो गए. थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं कि कभी मैं बोल दूंगी कि मेरे को ये आइडिया ठीक नहीं लगता. हाँ, दोज आर क्रिएटिव डिफरेंसेस और रिलेटेड टू रीच और रिलेटेड टू एंगेजमेंट काइंड ऑफ डिफरेंसेस, जिसके सबके अपने अपने आइडियाज हैं. तो वो चीज होती है, बट इट गोज अवे, राइट. तो मेन थिंग इज मेरे पास जब आती हैं चीजें तो आई डिस्ट्रीब्यूट इट कि तुम्हें ये नहीं करना है, सिर्फ यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल ऑफ दिस, यू हैव पीपल हु कैन डू दैट फॉर यू, राइट. सो दैट इज वेयर आई कम इन एंड दैट इज हाउ वी डील विद इट. लाइक अगर अभी रिसेंटली वी वर लुकिंग फॉर अ ग्राफिक्स डिजाइनर, राइट. सो करंटली मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रही हूँ, आई एम मेकिंग द थंबनेल एज वेल. सो वी हैव वन intern with us right now. She is also learning, she is a beginner, so उसके साथ भी बैठ के काम करना होता है अब, right. So that is how you grow, like distribute and learn. तुम सारी चीजें नहीं कर सकते, like start, मतलब जयेश लर्न कर रहा है, he is learning graphic designing, he is learning video editing. But the thing is अगर तुम्हारे पास टीम में लोग हैं और जो तुमसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, then give it to them. तुम भी सीखो, it's good, सीखो, but yeah, distribute करना आना is very necessary when you're doing anything like this. I add a point to this कि मतलब when you are someone, मतलब टेक्निकली when the content goes out, तो तुम्हारी टीम में सबको पता होना चाहिए कि किस तरह का वो कंटेंट बाहर जा रहा है. उसके लिए
when you are running a thing like this, like the आवारा मुसाफिर show, तो तुम्हारी टीम में सबको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब तभी तुम हाँ वो कि कंटेंट अगर डिजाइन जस्ट कर इन सकते हो. Like केस कैसा just अच्छा in case दिखेगा. Like at emergency least have an yeah yeah. Just have an idea of at least visualization. So it might be possible कि जो उन लोग को दिख रहा है, जो Exactly, what yeah. your team can see, you can't see that. yeah that's Yeah. Because it gets easier to explain to the person also कि this is my vision and ऐसा वो दिखना चाहिए. तो तुम vision explain कैसे करोगे until and unless you don't know the basics. So that's the thing. Right. True that. Right. So like at what point of like at what stage of Awara Musafir did all three of you like come together? Yeah, starting से ही था. I guess starting Starts से ही था. like Starting से we three even clicked even very before well. the episode Starting one. से. Very well. We clicked very well. Okay. Great. So how did you like this question is then relevant for all three of you. So how did you initially market your YouTube channel, or how did you start bringing in subscribers? So okay, this is a tough process, okay? Because starting में कुछ idea नहीं था, because and we have experimented a lot. So the people who don't know, I go by आवारा मुसाफिर on the internet, and उसीलिए शो का नाम द आवारा मुसाफिर शो है, because वो ब्रांड बन चुका था. तो first what we did was कि उस पे कुछ 8,000 plus followers है. तो वी स्टार्टेड पुटिंग अप द पोस्ट, जो तुम अभी द आवारा मुसाफिर शो के इस पे जो पोस्ट देखते हो, ये हम पहले उस पेज पे डालते थे कि वहां से थोड़ा एंगेजमेंट आना चालू हो जाए. So that's how we started, and that was the only plan for marketing at first. And YouTube के लिए फिर उसके बाद में we started building a community. So we have always maintained this कि we are not making followers or subscribers, we are creating a community where we can help people and they can help us. So what we did was कि we started a WhatsApp group जिसमें हमने लोगों को सेटअप बोल दिया था कि this is the community group, you come here, you talk about anything that you want and we will try to help you in any way possible. तो वो कम्युनिटी अब टेलीग्राम पे शिफ्ट हो चुकी है, बिकॉज व्हाट्सएप मैनेज करना इज नॉट इजी. बट हाँ, वो वहां से शुरू हुआ था. तो सबसे इजीएस्ट तरीका था कि उस ग्रुप पे आप लिंक भेज दो, जितने उस पे लोग थे एटलीस्ट उसके 20% आपका वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड दे शेयर. मतलब 20% ने देखा है तो एटलीस्ट 1% 3% शेयर करेंगे. तो दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या किया अंशुला, लाइक आई डोंट नो कि हमने कोई स्पेसिफिक थीम फॉलो किया फॉर मार्केटिंग. हाँ, फॉर मार्केटिंग वी डिड नॉट फॉलो एनीथिंग. बस यही था, सब अपने अपने हैंडल्स पे वी वर प्रमोटिंग इट. रिलीजियसली प्रमोट किया जा रहा था उस चीज को. लाइक हमारे खुद के जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, हमारे खुद के व्हाट्सएप्स हैं, उसको बहुत रिलीजियसली प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि इनिशियली वो जो एक एंगेजमेंट मिलना बहुत जरूरी है फॉर यूट्यूब स्पेशली, क्योंकि वहां पे ज्यादा जल्दी से लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते ना. लाइक हम खुद के एग्जांपल ले ले तो वी डोंट सब्सक्राइब टू हाफ द थिंग्स वी सी, राइट? सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी लाइक द वीडियो, ऐसे ही लाइक करके छोड़ देते हैं. एग्जैक्टली, बट वी वोंट सब्सक्राइब. हाफ द पीपल डोंट इवन लाइक द वीडियो, दे जस्ट सी इट एंड देन गो. And you know, this is our USP. Like हम conversation की वो करते हैं जो हमें सीखना है, right? तो because we wanted to learn about internet marketing, हमने एक ऐसे बंदे को invite किया जिसको वो आता था, and हमने उससे बात की कि कैसे कर सकते हैं. तो वो उससे हमारा हेल्प हुआ, उसको हेल्प हुआ बिकॉज उसका मार्केटिंग हो गया, एंड जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ नया सीखने मिल गया. एंड आफ्टर दैट वीडियो हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें की. तो बेसिकली एक चीज से हर जगह हम मल्टीपल निशाने मारने की ट्राई कर रहे हैं एंड होपफुली इट वर्क्स. वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट. मतलब हमने अभी अपनी नीश फाइंड कर ली है, बट वी आर स्टिल ट्राइंग कि इसके अंदर क्या, मतलब व्हाट आर द सब niches that we are going for. The biggest trick to getting a lot of followers and subscribers is कि तुम्हें अपना niche कभी नहीं मिल सकता. Like you keep digging into your niche and you keep getting subscribers in, because हर niche का एक micro niche होता ही है. तो you keep going deeper. Right, exactly. So right, we have a question here, so we can take this question first and then. All right. So, do you three take a decision according to 2:3 majority? Yeah, like what is the way you take most of your decisions? This is a question by Riyas. Riyas is my friend. we have divided our things from the starting. So whatever decisions are need to be taken related to marketing and stuff like that, वो मेरे ऊपर आ जाता है. And content creation, all the decisions that are needed, like for example management related decision, वो अंशुला का department है.
एंड जो इमेजेस मतलब क्रिएटिव इमेजेस है वो भी उसके ऊपर है. एंड करण देन कम्स इन विद द वीडियो एंड प्रोडक्शन साइड ऑफ एवरीथिंग. तो whatever he tells me, that is the, like, golden line for me. And whatever Anshula says in her specific things, that is the golden line for me. And we never try to sort of हाँ cut हम off each other. But yeah, मतलब अगर किसी के पास में कुछ opinions है या tips है तो we do share that. But for guests, like when you invite guests on your show, right? Yeah. So उसमें I think all three of you must be equally involved, So उसमें or is it some other way? उसमें like because we all are so much we think in a very similar way. तो हमारे likes and dislikes mostly same ही है. तो we are all so into we know spirituality, कि we are हाँ somewhere into art, we are somewhere into entrepreneurship side. तो गेस्ट के लिए हमें अब तक तो कोई ऐसा क्लैश नहीं हुआ है, बिकॉज करण सजेस्टेड अ गेस्ट तो हमने उनको लेके आए एंड वी एंजॉयड दैट कॉन्वर्सेशन. अंशुला सजेस्टेड तो वी ब्रॉट देम. एंड देन फिर बेसिकली गेस्ट को लाने के पीछे एक ही रीजन होता है हमारा कि वी ट्राई एंड सी कि उनको कितना नॉलेज है जिस चीज में भी वो काम कर रहे हैं, हाउ मच नॉलेज दे हैव, एंड देन वी ब्रिंग देम इन. पर उसके पहले बहुत स्क्रीनिंग होती है. लाइक वी ट्राई टू गेट इन पीपल जो एक्चुअली वो चीज पे कुछ बोल पाए, genuinely क्योंकि हाँ वी हैव कितनी genuine एपिसोड जो knowledge हमने हो अब तक रिलीज नहीं किया है फॉर द सेम रीजन कि हमने रिकॉर्ड कर लिया बट वो एपिसोड में कुछ हुआ नहीं है. आई कैन नॉट टेक द नेम, नहीं तो मैं बताता था कि वो किस चीज पे था. बट या I think the guest अगर वो attend कर रहे होंगे live, then he must be knowing कि हाँ मेरे बारे में बात हो रही है. नहीं not exactly, there are a lot of episodes जो अभी तक live नहीं गए, we have recorded Yeah. it so they can't pinpoint Oh. किसकी बात हो we रही है. still have like 6 to 7 weeks का content है जो हमने रिलीज नहीं किया है. Wow. Yeah. All right. So my next question is like, when would you suggest to have a team? Like, there are a lot of marketing tools or online tools that can help you, right? So all three of you can share your opinions. When do you think is the right time to form a team, especially when you're low on budget or a solopreneur? So Yeah. do you want to So- go first, Karan, Anshula? Yeah, Karan can go I'll ahead. go. I guess जितना जल्दी एक टीम बिल्डअप कर लो ना, you get a moral support, because कभी ना कभी you will also fall back on yourself कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा है, maybe I'm not doing something right. बट जब वो टीम आपके साथ होगी ना तो इट विल ऑल्सो गिव यू मॉरल सपोर्ट कि यार नहीं नहीं सही है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे कुछ और चेंज करेंगे. बट अगर Yeah. टीम नहीं होगी तो Yeah. फर्स्टली यू विल हैव नो इंस्पिरेशन, बिकॉज आपके पास हमेशा खुद का इंस्पिरेशन नहीं होना है. दैट्स इम्पॉसिबल कि मैं हमेशा मोटिवेटेड हूँ, दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो कभी ना कभी रात को अगर 2 बजे भी लग रहा है कि नहीं यार सही काम नहीं हो रहा है, तो यू पिंग समवन कि यार कितना फ्रस्ट्रेटिंग है. बट द अदर 2 पीपल ऑल्सो हेल्प ना कि नहीं करते हैं, ट्राई तो करते हैं, नेक्स्ट हाँ. टाइम के नेक्स्ट टाइम देखेंगे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी से जल्दी एक टीम बिल्डअप कर लो, बट डोंट रश द प्रोसेस कि हाँ बस ले लिया किसी को भी. योर Yeah. मेंटालिटी शुड मैच एट सम लेवल. उसके Find- बिना find the फिर right you are going, fit, हाँ हाँ. Right. नहीं तो बाद में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, और फिर जब जैसे एक टीम बिल्डअप हो जाती है फिर बाद में इश्यूज होते हैं तो वो बहुत एग्जैजरेट हो जाते हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बेस लेवल पे अपनी मेंटालिटी क्लियर करके फिर एक टीम बिल्डअप करो. प्लस Okay. जो करण ने कहा कि बाद में इश्यूज होते हैं, एंड बाद में इश्यूज होने पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर पर्सन Yeah. ऑफ द सेम कैपेबिलिटीज, राइट? एग्जैक्टली. तो वो वहां पे बहुत दिक्कत होती है. लाइक वी हैव बीन थ्रू इट, वी नो इट. Yeah. we will not take the name, but yes, we have been through it and we understood कि उसके बाद like how we are supposed to take people in. And So also, that is the thing. like I made this team. I got this team after 7 years of creating content. So 7 years of creating content was just trying to figure out things. And after like 7 years, मुझे समझ में आया कि if I have to do this on a bigger scale, I cannot do it alone. I need to have a team, because आप जब अकेले काम कर रहे हो आप कितना काम कर लोगे. लाइक यू कैन मे बी वर्क विद 20 clients, बट when you are working with a team you can go up to 100 clients or more. तो and also एक बंदे Plus का you have only creativity 24 is hours. इतना था, right? And collective creativity is इतना सारा. So you look at the content. That's the thing, yeah. True that. So, okay, and like, right. So this brings me to my next question. My next question is specifically for Anshula and Karan, Okay. because both of you from engineering backgrounds, and I would like to know
how was your experience shifting from an engineering IT kind of background to the creative side? Actually, Karan, I'll do you take it want to first. go? Okay, okay. So, like you said, like shift तो नहीं किया है अभी तक. Like I have not completely shifted. I think Karan has also not completely shifted yet. No, I Karan, have have you never shifted started, completely? and I didn't start working in the engineering field. I never started it. That's good. So I started working. मैं अभी भी काम कर रही हूँ. Like I'm still working in the MNC, right? तो मैंने completely shift नहीं किया, but at the back of my mind मेरे दिमाग में ये हमेशा से था कि I have to do something in creative field. तो मैं खुद मेरा इंस्टाग्राम जब मैंने शुरू किया था, इट वाज बैक इन 2016 या 2015, sometime that. मतलब मैं शायद 11th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने आई हैड स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट इन क्लास 9. और मैं ना ब्लॉग्स लिखा करती थी, ब्लॉग्स पे अपनी पोएम्स पोस्ट किया करती थी. तो ब्लॉग पोस्ट था गूगल का, उस पर मैं अपनी पोएम्स पोस्ट करती थी. एंड आई वाज लाइक यार यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा ज्यादा खास, let's move to some other another platform. So I shifted to Instagram. फिर मैंने लिखना शुरू किया यहाँ पे. लाइक मैंने देखी चीजें क्या चल रहा है कैसा है, so I started writing यहाँ पे. तो उसके बाद से I knew कि how Instagram worked. तो मेरे को इतना आइडिया था अभी तक में कि 4-5 साल हो चुके थे इंस्टाग्राम यूज करते हुए. आई न्यू हाउ हैशटैग्स वर्क, आई न्यू हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स, राइट. तो इतना आइडिया था. देन यूट्यूब का मेरे पास ज्यादा आइडिया नहीं था, बट देन ठीक है वो सीख लिया मैंने 1 साल में. जितना सीखा बहुत ज्यादा सीख लिया मेरे को लगता है 1 साल में मैंने. तो ऐसा है. बट ठीक है, आई एम स्लोली ट्राइंग टू शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम IT टू कम्प्लीटली क्रिएटिव साइड. सो इट्स अ प्लान इन प्रोग्रेस. लेट्स सी. सो आई एंजॉय. मेरा बचपन काफी क्रिएटिव रहा है. लाइक मेरे घर वाले बचपन से ही काफी सपोर्टेड थे. मतलब कि आई हैव लर्न कथक, आई हैव लर्न ड्राइंग, आई हैव लर्न सिंथेसाइज, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बचपन में. तो इट हैज ऑलवेज there was always some inclination towards creativity in the artistic field. Creativity तो सब जगह चाहिए है, I but in the can artistic completely field. relate. Right? Completely relate. Yeah. So ये एक Same पूरा है. story. Yeah, एक बैकग्राउंड है मेरे पास उस चीज को सपोर्ट करने के लिए. तो अभी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड. लेट्स सी. आवारा मुसाफिर को भी लेके काफी सारी चीजें हैं. खुद की पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से भी काफी सारी चीजें. तो आई एम प्लानिंग ऑल ऑफ इट राइट नाउ. Hopefully one day. Awesome. मेरे How लिए about you, मेरे Karan? लिए थोड़ा सा इजी था बिकॉज फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बाद मतलब कंप्यूटर्स हैव ऑलवेज बीन माय लव. मतलब बचपन से कि हाँ कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है. तो हाँ इंजीनियरिंग वाज द शॉर्ट कि ये तो करना ही है. बट फर्स्ट ईयर मैंने लगा नहीं ये वो चीज नहीं है जो मेरे को समझ में आ रही है. आई स्विच फर्स्ट ईयर में. आई वाज इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस. तब से सेकंड ईयर से फोटोग्राफी कर रहा था. आई वाज इनटू PR एंड एवरीथिंग. कुछ ना कुछ करना है क्योंकि ये तो नहीं हो रहा है. और बट ये छोड़ भी नहीं सकते कि हाँ बस ऐसे ही नहीं बोल सकते पेरेंट्स को कि हाँ मेरे को ये करना ही नहीं है. तो सेकंड ईयर से कुछ ना कुछ चालू था. पहले Right. फोटोग्राफी था, फिर वीडियोग्राफी था, फिर एडिटिंग वगैरह साथ में चालू था. कुछ ना कुछ चल रहा था. तो ठीक है मतलब इतना हार्ड नहीं था. अभी भी आई ट्राई टू राइट. आई एम इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग. अभी भी कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं. तो इट्स नॉट रियली हार्ड फॉर मी कि मैं तो एक काम ही कर रहा हूँ. तो इट्स इजी टू स्विच कि हाँ वीडियो एडिटिंग से राइटिंग पे आना इट्स ओके. अंशुला के लिए आई गेस इट्स वेरी हार्ड टू टेक आउट द टाइम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी वाला. दैट्स वेरी हार्ड. बट मेरे लिए तो ठीक है. आई रियली एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज एक टाइप पे अगर क्रिएटिविटी एक जगह चल रही है तो दूसरी जगह इट ऑल्सो हेल्प्स. कि आप बुक पढ़ रहे हो तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन राइटिंग. सो इट्स गुड फॉर मी. तो जैसे करण ने कहा ना, आई कैन टोटली. उसने जो कहा कि स्विच करना इज डिफिकल्ट. मेरा टाइम ऐसा चलता है अभी क्योंकि मेरा जॉब रात में शुरू होता है. लाइक 5 o'clock के बाद शुरू होता है. सो माई एंटायर डे इज फिल्ड विथ ये टास्क ऑफ द शो कि ये कंप्लीट करना है, इसको मेल करना है, ये वाला पोस्ट जाने वाला है, इसको चेक करना है, ये करना है, वो करना है. तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं कब काम नहीं कर रही हूँ. मैं पूरे टाइम काम कर रही हूँ. तो कई बार ऐसा लगता है. नाइट शिफ्ट करती है, फिर वो सुबह उठती है एंड शी वर्क्स ऑन द शो साइड. तो एंड प्रोबेबली शी My God. मतलब शी इज मैनेजिंग अ लॉट ऑफ बैक एंड स्टफ. तो काम बहुत ज्यादा होता है. तो 100%. या लाइक शी इज And मैनेजिंग. on some अंशुला के लिए days, तो मैं लगता some है कि days हाँ जॉब भी कर रही है, ये भी कर रही है, कर कैसे रही है. मैं ऐसे होती हूँ किसी ने उठ के मैं जयेश को मैसेज करती हूँ, जयेश आज ये मेल डालनी थी, मेरे से नहीं हो पाएगा आज, तू देख लेना ऐसे. सो या मतलब ठीक है. Right. ऐसे Like- दिन भी आते हैं बट ठीक है, वी वर्क, वी मैनेज इट. Exactly. Like it's all about कि
मतलब जो विजन है, द विजन यू गाइस हैव, एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, इट्स ऑल अबाउट Yeah, योर प्रायोरिटी, exactly. राइट? Absolutely. Yeah. So, right. So what is the biggest challenge that you have faced till now in Awara Musafir, like while managing a team, or like as a team and even individually, if you want to share? So I think so we can answer for our specific roles that we play. So when it comes to content, it is tough to manage it because you are doing two things. Okay, on Instagram it's reels, which is 30 seconds. On YouTube, which is podcast, is up to 1 hour or more than that. तो यू नेवर नो, यू नेवर हैव दैट बैलेंस, क्योंकि वो बहुत मतलब 1 hour and 30 seconds बहुत ह्यूज डिफरेंस है. तो you just don't know how to first of all create content, secondly how to distribute it, because सिर्फ Instagram और YouTube ही नहीं रहा है, now there is Clubhouse as well, there is Twitter जो already था, there is LinkedIn. तो it's tough to distribute your content कि कैसे तुम कर सकते हो, कैसे तुम create कर सकते हो. तो first challenge was that, but then we figured it out अब कि हमने content pillars बना लिए. तो first content pillar is कि तुम एक बड़ा सा वीडियो है तुम्हारा पॉडकास्ट, उसमें से ही चीजें चॉप आउट करो. इफ यू चॉप इट आउट फॉर 30 seconds, इट्स योर रील. इफ यू चॉप इट आउट फॉर 59 seconds, इट्स योर यूट्यूब शॉर्ट्स. इफ यू मेक इट लाइक 2 minutes समथिंग, तो ट्विटर पे एंड लिंक्डइन पे चला जाता है. देन द सेकेंड पिलर विच वी हैव स्टार्टेड नाउ इज कि वी आर गोइंग बिग ऑन राइटिंग. तो जो भी पॉडकास्ट होता है उसके तुरंत बाद में आई सिट डाउन एंड आई राइट डाउन एवरीथिंग जो मैंने उस पॉडकास्ट से सीखा है. फिर उसमें से तुम ब्लॉग्स बना लो, लिंक्डइन पे डाल दो, तुम उसमें से 3-4 लाइन कट करके ट्विटर पे डाल दो. एंड ऑल्सो बुक्स है, तो बुक्स पढ़ने के बाद में रैंडम थॉट्स आते हैं, वो तुम ट्विटर पे डाल दो, उसी को बड़ा करके लिंक्डइन पे डाल दो, उससे एक सोलो पॉडकास्ट क्रिएट कर लो, सोलो रील क्रिएट कर लो. तो दैट फर्स्ट चैलेंज वाज दैट कि क्रिएटिंग कंटेंट. सेकंड वाज टू फाइंड योर ऑडियंस. मतलब हम ऐसे एक चीज कर रहे हैं जिसमें तुम ऑडियंस नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज वी स्टार्टेड ऑफ एज अ पॉडकास्ट जो शायद से फोटोग्राफी कंटेंट क्रिएटर्स पे बेस्ड था, एंड देन वी गॉट इनटू वेरी हैवी साइड. मतलब यू कैन नॉट कंपेयर इट कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पहुंचे. बट अब जो हम कर रहे हैं, इट हैज वेरी हैवी एपिसोड विद पीपल फ्रॉम द इंडियन आर्मी, पीपल हु आर डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी. अब हम एक एपिसोड रिलीज करेंगे विच इज कम्प्लीटली अबाउट हिस्ट्री, इट्स विद अ हिस्टोरियन. तो इट्स वेरी हैवी. तो यू नो, टू फाइंड एन ऑडियंस, क्योंकि हर हफ्ते तुम एक अलग चीज अब क्रिएट कर रहे हो. अब वो कंटेंट मतलब सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर नहीं है, तो तुम लोगों को कैसे ढूंढोगे. तो देयर वी फिगर्ड आउट कि हम लोगों को नहीं ढूंढ सकते, जो ऑलरेडी लोग हैं उन्हें उस तरीके से हमें मोल्ड करना होगा. तो धीरे धीरे हमने फिर उन लोगों से बातें करना स्टार्ट किया. एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि हमने एक कम्युनिटी ग्रुप बना दिया था. We started conversations with them, and since we three talk a lot about history, spirituality, and कभी-कभी entrepreneurship पे बात कर लेते हैं, तो उन लोगों के साथ में हमने वो चीजों पे बात करना चालू किया, एंड हमने उन्हें मोल्ड किया उसमें कि you come and you consume this content because this is what the future will be. एंड उस तरह से फिर लोग बने. एंड अभी वी नो कि अगर हमें कुछ 2000 लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो उसमें से हम कंटेंट बना रहे हैं सिर्फ 20 लोगों के लिए, जो पता है हमें कि हमारा कंटेंट रिलीजियसली कंज्यूम करेंगे. सो दैट वाज द थिंग व्हिच वी फिगर्ड आउट. मतलब एंड केविन केली का एक आर्टिकल भी है कि टू गो बिग ऑन इंटरनेट यू डोंट नीड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, यू जस्ट नीड 1000 ट्रू फैन. सो दैट्स द थिंग. या दैट वाज द कंटेंट क्रिएशन चैलेंजेस. Right. How about you, Anshula and Karan? Karan, you can go ahead on this I first. guess मतलब I'll go creative last. side में वीडियो एडिटिंग एंड एवरीथिंग में बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस है ये. कि आप नया क्या क्रिएट कर सकते हो विद द एंटायर 9:6 का 9:16 का रेशियो. यू नीड समथिंग न्यू, और वो न्यू करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी कर दो, चलो आज कलर चेंज कर देते. दैट्स नॉट समथिंग न्यू. यू नीड टू पुश इन समथिंग न्यू, और वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टिव प्रोसेस है कि नया क्या करना है. एंड थिंकिंग अबाउट इट इज वेरी हार्ड कि आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है. इफ यू सी आवर फर्स्ट वीडियो और अभी लास्ट वीडियो जो आया है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. मतलब अपार्ट फ्रॉम द इक्विपमेंट, उसके अलावा भी डिफरेंस इतना क्रिएट हो गया. एंड दैट्स बिकॉज कि हमारा क्रिएटिव प्रोसेस अच्छा हो गया, इवॉल्व हो गया. एंड दैट्स वेरी हार्ड कि हाँ अभी सोचना है कुछ नया करने का, दूसरे लोगों को देखो, लर्न फ्रॉम देम, इवॉल्व फ्रॉम देम. वही बात है. तो मेरे Yeah. रोल में लेट्स सी. ओके, फॉर द कंटेंट राइटिंग पार्ट, आई मतलब मेरे को उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती. ठीक है, मतलब
क्योंकि मेरे को पता है कि इस तरीके की चीज जानी है अल्टीमेटली, इतना आइडिया लग चुका है मेरे को अब तक कि सो फॉर मी इट इज वेरी इजी टू राइट अ डिस्क्रिप्शन। मतलब मैं संडे को भी अगर बैठूं आधा घंटे निकाल के, तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने जयेश को 6:30 बजे शाम में डिस्क्रिप्शन भेजा है कि दिस इज द डिस्क्रिप्शन, डाल देना है इससे करके। ऐसे भी दिन आए हैं अभी बीच में, ठीक है। तो as far as content writing is concerned, I don't think मैंने कुछ जैसे बहुत major issue face किया है, but yes, when it comes to thumbnail का designing, so I was into Illustrator, ठीक है। मतलब मेरे को आइडिया था इलस्ट्रेटर यूज करने का बिकॉज आई यूज टू मेक डिजिटल पेंटिंग्स, बट देन अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग टू मेक डिजिटल पेंटिंग एंड टू मेक अ थंबनेल, प्रॉपर थंबनेल, yes, which has a proper design which is there कि वो कितना Right. कैची हो सकता है, राइट? Got it. तो Right. so we did that. तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे आई वाज लाइक ठीक है ये कैसे होगा, लेट मी फिगर दिस आउट। बट ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि कैसे वी हैव टू चेंज थिंग्स, एंड अब तो हम खुद एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं थंबनेल्स के साथ। लाइक अभी मैंने बनाना शुरू कर दिया है कि कैसे थंबनेल हो सकता है। वी सी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन थंबनेल्स के लिए कि क्या हो सकता है, कि इनने क्या किया है कि ये अट्रैक्टिव इतना है, कि उसका क्लिक थ्रू रेशियो इतना ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थंबनेल या जो भी चीजें हैं। So that is one thing. And when it comes to managing the thing, उसका तो I don't know उसमें challenges क्या है, उसमें it is all a very big mess, ठीक है। जो Trial and error method है। yes, it is a trial and error method. कि हम सब अलग अलग जगह पे, लाइक द होल टीम, मतलब इंडिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं अभी। So it's very tough calendar to manage. helps. Calendar helps. तो कुछ भी होता है, सो इट्स माई ड्यूटी टू पुट दैट इन द कैलेंडर। तो जयेश के पास नोटिफिकेशन चली जाती है, करण ऑल्सो गेट्स टू नो कि हाँ ये चीज हो रही है, द गेस्ट ऑल्सो गेट्स टू नो कि हाँ ये चीज हो रही है, एवरीबडी नोज दैट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। उसके अलावा एक मेजर थिंग जो हम अभी भी, मतलब आई गेस वो हमेशा ही रहेगी, इज टू ब्रिंग इन गेस्ट। वो मेरे ख्याल से हमेशा ही रहेगा, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग वी गो, या अभी भी है तो इट विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज गेस्ट तो गेस्ट है। इट्स अप टू देम इफ दे वांट टू कम और नॉट। वी कैन जस्ट कीप इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स विद आवर प्रोडक्शन एंड आवर थॉट प्रोसेस, राइट? तो अगर तुम मतलब दिन में 100 मेल्स डाल रहे हो अलग अलग गेस्ट को विद डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, उसमें से शायद 5 लोग रिप्लाई कर। तो मतलब हमने ना बहुत कोल्ड ईमेल्स किए हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ईमेल्स किए हैं अब तक, बहुत ही ज्यादा। सो अब आदत है हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि लाइक गेस्ट ने एक्सेप्ट करने के बाद में मना किया है। तो देयर इज दिस वन गेस्ट हु इज अ एक्टर, उनके साथ में हम सीजन 1 से अब तक हम पूछ रहे हैं एवरी वीक। ट्यूसडे को मैं उनको 11 बजे सुबह मैसेज करता हूँ कि इस वीक करें। शी रिप्लाइज टू मी बाय 4:30 कि नेक्स्ट वीक करते हैं, एंड ये तब से सीजन 1 से अभी तक यही कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसा भी होता है। उस चीज का एनिवर्सरी होने वाला है। Oh my god. Yeah, there's a question by Aditya. How do you make thumbnails so that it's attractive and at the same time doesn't sound clickbait? So it's for you, Anshula, I guess. Clickbait. So clickbait तो यार बनाने पड़ते हैं. Like we try to make it clickbaity, क्योंकि हमें पता है कि थंबनेल ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले दिखेगी इंसान को ऑन YouTube। तो जब तक थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, लाइक व्हाट वी डू इज कि फॉर एग्जांपल जो हमारा सबसे रीसेंट एपिसोड है रामायण का, तो हमने टेक्निकली बात उसमें, मतलब जो थंबनेल था उसमें तो बुक का नाम लिखा है क्योंकि इट वाज फॉर अ बुक, एंड जो टाइटल होता है तो देयर वी रोट टाइटल हमने रखा कि did Ramayan really happen or not? तो it's not clickbaity as well because हमने उस एपिसोड में really उस चीज पे बात की है, and the whole episode is about facts about Ramayan. So not clickbaity but yeah catchy हम try करते हैं कि कैसे बना try, हाँ, मतलब clickbaity भी try करते हैं हम, someone who should, yeah, they should like उनको लगना चाहिए कि read that and curious होना चाहिए इंसान, वो चीज पढ़ने का they should think. Yeah, right. Exactly. So जो हमारा recent title था for the Ramayan episode, उसके ऊपर हमें थोड़े comments आए हैं, like some people did not like it, some people liked it, but then it is what it is. Yeah, that is always going to happen. Whenever you are talking about religion, so we don't pay attention to that because we know कि हमने किस intention से वो रखा था. एंड इट इज नॉट लाइक कि यूट्यूब पे कोई वो कर नहीं रहा है, ठीक है, मतलब। एंड ये क्वेश्चन सबको आता है कभी ना कभी लाइफ में कि रामायण एंड महाभारत सच में हुआ था या नहीं हुआ था,
दिस इज द हाँ मतलब मतलब व्हेन यू आर अ किड ये सवाल सबको आया है कभी ना कभी, तुम ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर, तो दैट्स द थिंग। या what is your advice to someone, to a team maybe, or to an individual marketer who is starting out? You like the biggest problem with a lot of marketers or maybe like content creators is that they create content which they want to, like it needs to be amalgamation of what people want and what you want to create, so वो 50-50 होना चाहिए, it cannot be 60-50 also, 60-40 sorry. So you need to keep that in mind and then create your content. You need to understand your audience before you go out and market your product, क्योंकि अगर तुम बेसिकली टूथब्रश बना रहे हो फॉर समवन जिसके पास दांत ही नहीं है तो क्या यूज है, दैट्स द होल थिंग। सो और द अदर टिप इज कि अगर तुम वो नहीं कर सकते तो यू जस्ट मेक द ऑडियंस लाइक योर प्रोडक्ट बाय मेकिंग इट यूनिक। तुम उन्हें इस तरह से सेल करो कि दिस इज रॉयल्टी जो हमने किया है, लाइक वी कीप टेलिंग द ऑडियंस की दिस इज व्हाट यू विल get benefited get by. Yeah, this is what the real knowledge is. So that's how we sold our content, and we also मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं, we try to keep the content that way कि कुछ नया उसमें से निकले। तो even if we are doing a spiritual episode या mythological history based episode, हम try करते हैं कि we talk about things जो लोग नहीं बात करना चाहते जिस चीज पे। तो for example, आई डोंट नो कब रिलीज होगा बट देयर इज दिस एपिसोड व्हिच इज कमिंग आउट, 2 घंटा हमने सिर्फ डेथ के ऊपर बात की है विद अ मॉन्क। तो एंड पीपल 10 मिनट Wow. नहीं बात करते, तो दैट्स द थिंग। Great. Great. How about Anshula? How about Karan? Like, आई थिंक मार्केटिंग तो मतलब ठीक है मैं नहीं करती इतना, दैट इज अ कंप्लीट एरिया जो जयेश हैंडल करता है, बट आई गेस इट इज ऑल अबाउट गिविंग बैक। ठीक है, तो तुम जितनी चीजें ले रहे हो उतनी चीजें तुम अगर वापस प्रोवाइड कर सकते हो Yeah. टू द कम्युनिटी या टू द सोसाइटी, दैट्स हाउ यू ग्रो। तो हमने सेम कॉन्सेप्ट अभी हमारा क्लब हाउस पे यूज किया हुआ है। वी आर इनवाइटिंग पीपल टू जॉइन अस, like you can host Yeah, your so own podcast, yeah. make your own weekly sessions on our community if you want, So we are अगर giving तुम्हें चाहिए our है। whole followers base to them. We are promoting the Yeah, podcast जो वो करेंगे weekly basis पे। तो that's our way to give back कि तुम आओ हमारा ऑडियंस यूज करो, यू गेट अ बेस, यू गेट टू लर्न, एंड वी एक्चुअली गो देयर एंड वी मॉडरेट फॉर द पर्सन, ताकि अगर वो इंसान कहीं पे exactly, बीच में अटक रहा है तो वी कैन जंप इन एंड help सेव them, हिम और yeah। हर फ्रॉम दैट पोजीशन। So that is, I think it's a good awesome. marketing strategy, this as far as I understand Definitely. it। So that Yeah. is what we are doing That right now। that is what like new marketers or And new startups or like whoever is starting out and they want to sell or bring something in the world, they like that's what they want. They want a follower base. They want some people to listen to them. Yeah. Kharidna nahi kharidna, that is a yeah, different thing. But at least they want to increase their reach in the beginning. Brand I awareness. think Yeah. that's the most important thing. And also Yeah, like I'll you just join as in a that. content creator, as a marketer, मतलब when you are especially doing social media marketing, you need to have various baskets for your egg। मतलब तुम अगर एक बास्केट में सब एग्स रख दोगे एंड वो बास्केट गया तो तुम्हारे एग्स गए, जो सब कुछ कुछ टाइम गया। पहले होने वाला था। कुछ लोगों के साथ हुआ है, जो लोग टिकटॉक पे बहुत ज्यादा कंटेंट डाल रहे थे, टिकटॉक गया, suddenly everything was gone for them, and there were suicides that were posted by journalists, Right. reported by journalists कि टिकटॉक जाने से उनका पूरा जो करियर था एक तरह से वो खराब हो गया। तो ऑलवेज हैव वेरियस प्लेटफॉर्म्स, अपनी बेसिकली ऑडियंस हर प्लेटफॉर्म पे एक ही है। बढ़ाते रहो। लोग हमें हाँ, इंस्टाग्राम बट पे फॉलो करते हैं, वही लोग ट्विटर पे भी करते हैं, पर बिहेव अलग तरह से करते हैं वो। तो यू नीड टू फिगर दैट आउट एंड देन मतलब Jayesh, एटलीस्ट बी देयर ऑन Jayesh, बोथ please, प्लेटफॉर्म्स। please give the example of Twitter and Instagram here, Oh, the audience। yeah. Just before this live, I was talking to Anshula. तो मैंने ट्वीट किया, ठीक है, एंड वो ट्वीट पे एक भी रीट्वीट नहीं है, एंड मैंने सेम ट्वीट का स्क्रीनशॉट उठा के अपने पर्सनल प्रोफाइल पे डाला, एज इन आवारा मुसाफिर वाला प्रोफाइल, एंड वहां पे 11 लोगों ने शेयर किया। अब ये 11 लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं, See, बट वहां that's the difference। पे तो इसलिए दैट्स हाउ ऑडियंस हर पीपल हैव जगह में डिफरेंट जरूरी है। मेंटालिटीज ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, so you need to figure that out। Right. Karan, how about you? What is the marketing tip or what is the tip in general that you would give to anyone who is starting out? आई गेस एक ही वर्ड है, कर लो, चालू तो करो।
आगे Yeah. फिगर आउट कर लेंगे. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग एंड इफ यू आर सो श्योर कि मेरे को काम तो करना है, तो एक बार स्टार्ट तो करो. यू विल फिगर इट आउट योरसेल्फ. एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट योरसेल्फ, some sign कोई you ना will get कोई from the universe कि हाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाएगा कि नहीं कर एग्जैक्टली तो Yeah. लो. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज Great. जब हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्टली स्टार्ट करने के पहले 6 months तो मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया था इस चीज पे, ये सोच के कि मेरे पास में गेयर्स नहीं है ना, मेरे पास में टीम है, तो मैं कैसे करूंगा. फिर उसके बाद में वी जस्ट स्टार्टेड आउट. एंड उस टाइम पे जब फर्स्ट सीजन तो शायद हमारे पास में लाइट भी नहीं था, राइट? मतलब माइक छोड़ दे लाइट भी नहीं था, लाइक जो प्रॉपर कुछ लाइट होती. कुछ और जो नहीं था अच्छा सा उस टाइम. webcam था वी यूज्ड टू उसमें भी वो जस्ट भी या कुछ भी वी होता यूज्ड टू रहता था. जस्ट डू इट. कुछ सिर्फ जयेश के लैपटॉप के कैमरा से होता Yeah. था आई गेस. इनिशियल जो एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं वो लैपटॉप कैमरा से रिकॉर्ड हुए गए हैं. और माइक भी बाद नहीं में था आई गेस शायद जो तब हमारे कैमरा, पास. जो बाद में जो वेबकैम था वो भी कोई सपोर्ट करता नहीं था. हाँ, कभी फिर भी हमने कुछ भी हो वेबकैम जाता पे था. शिफ्ट किया विच वाज इक्वली बैड. फिर उसके बाद में हमने फिगर आउट किया कि क्योंकि जूम कॉल पे ही पॉडकास्ट करना है फिलहाल अभी, क्योंकि गेस्ट को तुम कैसे लेके आओगे पैंडेमिक में, तो फोन से हमने फिर अब फोन को एक एप्लीकेशन के थ्रू वेबकैम बना दिया, तो जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है. एंड फिर लाइट लिया, फिर माइक लिया, तो माइक ले आओ. सब चीजें अपने आप आती रहेगी. यू फिगर आउट स्टफ व्हेन जस्ट यू स्टार्ट. स्टार्ट. यू या स्टार्ट, यू जब नीड टू स्टार्ट स्टार्ट. कर लोगे तब हो जाएगा सब कुछ. तो मतलब सिंपल. कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी कोर्सेज कर लो, कुछ काम में नहीं आएगा until and unless you start and you implement those things. तो या Right. Right, exactly. That is what even I'm trying right now. देखते हैं how well this goes. And like, thank you so much for joining. Like, you don't know how much anytime, it means to me. anytime anytime. हाँ. we are always Great, it's open great to to hear. you know हम देख हम हमेशा कहते हैं लाइक टू एनीबडी हु अप्रोचेस अस कि आप एकदम बहुत बहुत आराम से अप्रोच करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वील फिगर आउट लाइक जो भी है जितना हमसे होगा वील डू इट. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज से एंड वी ऑलवेज कीप ऑन दैट. सो आई गेस दैट इज वन थिंग, क्योंकि ऑडियंस इंटरेक्शन हमने बहुत ज्यादा रखा हुआ है अभी तक. लाइक वी मेक श्योर दैट So वी the thing रिप्लाई is टू कि ईच yeah, each the DM thing or is each comment. Anshula also loves to talk, Karan also loves to talk, and हम बहुत अजीब अजीब टॉपिक पे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल yesterday me and Anshula are talking around what 2:30 a.m. or 3 a.m. in the morning, and हम बात कर रहे हैं कि रामायण जो लोग बोलते हैं अलग अलग उसके वर्जन्स है, तो कैसे we है वो were अलग relating अलग. quantum physics and string theory. तो हम बहुत अजीब अजीब चीजों पे Like बात करते हैं. That's why we are open to talking with anyone, like literally anyone. एंड and मतलब पता नहीं हमें मजा आता है बात करके. सो दैट्स द थिंग. जो भी हमारे पास आती है चीजें एंड इफ इट कम्स टू समबडी और अगर उसको नहीं पता है उस बारे में, भी मेक श्योर कि हम उस चीज को एक सही जगह Yeah. डाइवर्ट करें. लाइक अगर कभी जयेश के पास कुछ आते हैं हेल्थ से रिलेटेड चीज या रिलेटेड टू सम वर्कआउट, तो जयेश मतलब ही आंसर्स मोस्ट ऑफ इट जितना उसको पता होता है. देन ही इज लाइक अंशुला ये एक है, ये बात कर लेना इससे जाके. मैंने कहा ओके. दिस बिकॉज इज व्हाट वी एक्चुअली आई डू. डू योगा एंड मैं तो कुछ नहीं, मैं मतलब अपने बेड से उठता भी नहीं. तो दैट्स द थिंग. So that is the thing. मतलब ऑडियंस इंटरेक्शन भी बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आई गेस. Oh yeah, it's the biggest marketing thing which you can probably कितना acquire तुम कितना ज्यादा anytime in connect life. कर ऑडियंस सकते को हो. जब हाँ, तक होमली जितना फील नहीं ज्यादा होगा connect they करो. will not dedicate their time to Yeah, you. अगर होमली exactly. फील नहीं हो रहा है उनको तो. True. True. तुमको जानते नहीं, if they can't Connect to accept you. you as a friend, Yep. then Yeah. they are not Yeah. going to support you also. Exactly. Yep. So Right. So the whole thing Awesome, about this awesome. podcast since the start was to provide value, to provide knowledge, because somewhere करण ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो इंजीनियरिंग करने के बाद में भी उसको ऐसा कभी लगा नहीं कि वो इंजीनियरिंग कर रहा था. अंशुला इज लाइक फ्रॉम दैट सेम स्टेट. आई कम फ्रॉम वेरी सेम प्लेस. मतलब मैंने तो मेरी डिग्री भी नहीं उठाई, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, जबकि मैंने सब पेपर्स मेरे क्लियर किए. एंड आई कम फ्रॉम जर्नलिज्म बैकग्राउंड, जो मुझे करना था, जो मैंने जिद करके लिया था. बट वो कोर्स ही इतना बकवास है पूरे इंडिया में कि वो कोर्स है, कोई भी कोर्स नहीं, एजुकेशन पूरा मतलब वो सिस्टम ही गिर चुका है. तो यू प्रोवाइड नॉलेज टू योर. I am enjoying MBA. MBA अच्छा है. हाँ मतलब हायर एजुकेशन इज बेटर the बिकॉज thing is हर किसी का अपना ओपिनियन है अबाउट स्टडीज एंड एवरीथिंग. सो वी डोंट, हम ये नहीं True. बोलते कि तुम पढ़ाई छोड़ के हाँ. ये सब करने लगो. वी नेवर प्रमोट दैट. इट्स टोटली अप टू अ पर्सन Right. इसको क्या करना है. जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो चीज करो. हम नहीं बोलते, वी नेवर से कि आप पढ़ाई छोड़ दो.
एंड दैट्स व्हाई लाइक मैंने जब तुझे बायो भेजा तो उसमें लिखा है कि आई वांट टू बिल्ड माय ओन कंटेंट क्रिएशन स्कूल. Open. तो दैट्स द Right, होल थिंग कि right. मतलब यू नो कंट्री में इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, ये तीन या लॉयर, इसके बाद इनको ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जबकि कंटेंट क्रिएटर्स आर अर्निंग दैट मच एट द सेम पॉइंट. मतलब इफ यू लुक एट रणवीर, तो उसका एक वीडियो है जिसमें वो बोलता है कि वो 2 से 3 लाख पर मंथ सिर्फ यूट्यूब से कमाता है. ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग इज अलग, सिर्फ एड से. तो यू लुक एट द रेवेन्यू, डूड. Wow. हाउ कैन यू देन डिसरेस्पेक्ट कंटेंट क्रिएटर्स? सो एंड वो इसीलिए True क्योंकि that. उस चीज का किसी को प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उसमें डिग्री नहीं मिलती उसलिए. तो Yeah. दैट्स द गोल. I don't think it even matters in the long term. मतलब अब तो realize हो गया है, like 1 or 2 years after you graduate, people will still ask. But Yeah. 5, 10 years down the line, not कोई नहीं not पूछेगा. no one anymore. Like, cares. अब तो कोई पूछेगा नहीं because of the pandemic, right? क्योंकि हाँ. पैंडेमिक में people lost their jobs and people started something new जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. Hmm. People started content creation. तो if you know, पैंडेमिक के स्टार्ट में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स पॉप अप हुए, लाइक तनीशो. शी इज अ लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को उसका नीच नहीं पता एग्जैक्ट. देन देयर वाज वन मोर गाय, उसका नाम भूल गया. दीज ऑल पीपल स्टार्टेड पॉपिंग अप. हमने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट किया विद दृष्टि शर्मा, शी गोज बाय दृष्टि स्पीक्स. तो वो भी पैंडेमिक में ही उसने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था. तो कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर. True, I'll agree. Right. Thank you so much for your time, Jayesh, Anytime. Karan, Anshula, all three of you. Anytime, Thank you so anytime. much. And as soon as it is posted on other platforms, I'll definitely let you know. Yeah. I'll recommend everyone to check out Aura Musafir and subscribe Thank to you. their channel, Thank you follow so their much. Instagram page because it's absolutely amazing. The variety of topics they're covering and like everything they're doing is it's absolutely awesome. So you must check it out. Thank Yeah. you so much. So Thank thank you you so so much. Thank you so much, everyone. And yes, see you soon. Take care. Absolutely. Yeah. Thank you so Bye. much. Bye. Thank you so Bye much. bye. Bye. Thank you. Bye.